Hello everyone, welcome to this my channel. In last videos we are discussing about a electrical instrument, that is meter bridge, and in this video we are discussing about a potentiometer, that is another electrical instrument which is used to find the internal resistance of cell. It is also used to measure the potential difference between any 2 points. We can measure the small potential difference. Also it is used to compare the EMF of the cell. So first of all, we have to look at the construction of potentiometer, and then we are going to learn about a principle of potentiometer, means on what basis the potentiometer can be work. तो ये आपको अगर ये समझना है अच्छे से तो आप इस वीडियो को पूरे दिल से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियोमीटर कैसे यूज किया जाता है. प्रॉब्लम में भी पूछे जा सकते हैं, जेई में, नीट में, तो उस तरह से भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर सकते हैं. तो देखिए पोटेंशियोमीटर क्या है. So first of all, in the potentiometer there is a uniform, thin and homogeneous. Uniform means having a same radius across its length, पूरे length में उसका radius same होगा, that is uniform. Then homogeneous means which is made up of a same material, single material. And then I said thin, uniform and homogeneous. This AB, wire AB, having a length about 4 meter to 10 meter. So generally in laboratory we are taking the about 4 meter. This 4 meter wire is fixed on the wooden board in the form of segments of 1 meter. These are the segments of 1 meter. This is AB. Potentiometer wire AB having a length 4 meter, which are fixed on the wooden board having a segment of 1 meter. These are the copper strips. There are the copper strips. These are the copper strips. To attach the wire to the copper strip in the segment of 1 meter, that is total length of wire is taken as 4 meter. This is called potentiometer wire. This potentiometer wire is connected across a battery. I said battery E of EMF E, key K, and rheostat RH. This is rheostat RH. Okay, this battery is called as driving battery. This battery having EMF E called as driving battery. Why it is called as driving battery? Because of this battery a constant current is flowing to the wire and the potentiometer is set into working. इसको वर्किंग में लाने के लिए एक कांस्टेंट करंट फ्लो होना जरूरी है. एबी वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहेगा, तो वो करंट फ्लो करने का काम ये ड्राइविंग बैटरी करती है. इसका मतलब एबी के अक्रॉस, पूरे वायर एबी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है, तो आपका पोटेंशियोमीटर वर्किंग में आता है. तो इसलिए हम इस ई को कहेंगे ड्राइविंग बैटरी, की के रियोस्टेट RH है, और ये वायर ए बी है पोटेंशियोमीटर वायर. तो कांस्टेंट करंट आर इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. दिस इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर. दिस इज अ कंस्ट्रक्शन. ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? इट मीन्स हाउ द पोटेंशियोमीटर कैन वर्क to measure the potential difference, or to measure the internal resistance of cell, or to compare the EMF of cell. So that is on what principle it can be worked. That is called principle of potentiometer. Here we are look principle of potentiometer. It is so simple. What is principle? Principle क्या है इसका? तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक वायर ए बी. चलो हमने एक वायर ए बी कंसिडर कर लिया, एक स्ट्रेट वायर कंसिडर कर लिया. चलो जितने भी लेंथ है उसको, थीन है, होमोजेनियस है, यूनिफॉर्म है वायर, और उसको हमने कनेक्ट किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया वायर के अक्रॉस, एक की के कनेक्ट कर दिया, और रियोस्टेट RH कनेक्ट कर दिया. ओके, चलो तो देखो ए पॉइंट जो है वो आपका हायर पोटेंशियल पे, और बी जो पॉइंट है वो आपका लोअर पोटेंशियल पे है. ठीक है, तो ए और बी के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस बना है. ठीक है, तो प्रिंसिपल का कहना क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? So this principle of potentiometer is a potential difference between any 2 points on the wire. Potential difference between any 2 points on the wire is directly proportional to the length of wire between these 2 points. यानी वायर में आप कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर करोगे तो 2 पॉइंट के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ वायर को. और लेंथ ऑफ वायर कौन सा लेना पड़ेगा? जो 2 पॉइंट है उसी के बीच का हम लेंथ ऑफ वायर कंसिडर करेंगे. सपोज हियर आई कंसिडर ए पॉइंट P.
तो वायर एपी, अगर वायर एपी यानी ए से लेके पी तक अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या कहूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एपी, यानी वायर दो पॉइंट के बीच में जितनी लेंथ है वायर की उसको हमने यल कंसिडर कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल बनेगा, ये चीज बनेगी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप ये इक्वेशन से जाओगे तो आप पूरे वायर पे कोई भी दो पॉइंट दिए रहेंगे तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इजीली फाइंड आउट करेंगे बाय दिस इक्वेशन इजीली। तो यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आना चाहिए। वो क्या कांस्टेंट क्या आता है उसके लिए हम थोड़ा सा उसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ में वो इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर देखो यहाँ पे एक पे हाइयर पोटेंशियल है, बी निगेटिव को कनेक्ट है तो बी का पोटेंशियल लोअर है, ये तो हमें पता है। यानी जैसे जैसे हम वायर में ए से लेके बी तक जाएंगे तो पी का पोटेंशियल ए से थोड़ा कम है, क्यू का पोटेंशियल ए से पी से और कम हो गया। यहाँ पे अगर मैं एक आर पॉइंट लिया तो आर पॉइंट का पोटेंशियल और कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ए पी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ए क्यू का निकालोगे तो वो ज्यादा रहेगा, और ए आर का निकालोगे तो और ज्यादा रहेगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जैसे जैसे पॉइंट हम बी की तरफ लेके गए वैसे वैसे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया। इसका मतलब वो जो वायर की लेंथ है ए से लेके उस पॉइंट तक, वो लेंथ भी बढ़ी है, लेंथ बढ़ने की वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता गया। और ये तो सीधी लॉजिकली बात है बेटा, अगर बी का पोटेंशियल डिफरेंस कम, पोटेंशियल कम है, बी का पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल कह रहा हूं मैं, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे बी की तरफ तो पी का पोटेंशियल ए से कम हो जाएगा, क्यू का पोटेंशियल पी से भी कम हो जाएगा, आर का पोटेंशियल और कम हो जाएगा। ये कम होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, चलो एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। अगर ए 10 वोल्ट पे है और बी आपका सपोज कीजिए 2 वोल्ट पे है, तो पी पॉइंट आपका 8 वोल्ट पे आ गया, थोड़ा कम होता जाए, क्यू पॉइंट आपका 6 वोल्ट पे आया, आर पॉइंट आपका 4 वोल्ट पे आ गया। तो एपी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये देखो ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पी का पोटेंशियल 8 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 2 वोल्ट का, 10 - 8 2 वोल्ट बनेगा। ए क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ए का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, क्यू का पोटेंशियल 6 हो गया, तो ए और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया 4 वोल्ट का, 10 - 4, अगर आप 10 - 6 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, तो 4 वोल्ट बन गया। ए और आर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तो ए का 10 है, आर का 4 है, 10 - 4 करेंगे तो 6 वोल्ट आया। तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे हम ए से दूर जा रहे हैं बी की तरफ तो हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है, पॉइंट का पोटेंशियल कम होता जा रहा है। इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे हैं हम हर पॉइंट के लिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये थोड़ी अलग अलग चीज। पोटेंशियल यानी ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, दैट इज अ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल में फर्क कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती गई पॉइंट के बीच में वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका बढ़ता गया। तो चलो ये चीज को हमें प्रूव करना है, तो देन हाउ वी कैन प्रूव, दैट इज लुक एट हियर। तो देखिए, तो हमने क्या करना है, तो वीएपी निकालना है। चलो सपोज करेंगे ये बैटरी लगाई है, इसका ईएमएफ ये, इसके वजह से कांस्टेंट करंट फ्लो रहा है, सर्किट में से आए तो पूरे वायर में से भी वही फ्लो रहा है। अगर मुझे वीएपी निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस एपी निकालना है, तो मैं लूंगा आर। अब रेजिस्टेंस किसका लेंगे, एपी का ही लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ एपी इनटू क्या लूंगा, करंट आई, करंट आई फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है आपका, V = IR बनता है। ओम्स लॉ के हिसाब से अगर एपी, सिर्फ एपी वायर का इतनी दो पॉइंट के बीच में जो वायर है उतनी पॉइंट को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसके बीच में रेजिस्टेंस, फिर वायर का रेजिस्टेंस हम सिर्फ एपी का रेजिस्टेंस लेंगे। तो एपी का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलो कंसिडर करेंगे। तो एबी वायर हमने पहले थिन यूनिफॉर्म वायर लिया है, तो इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वायर थिन और यूनिफॉर्म है, कहीं भी रेडियस नहीं बढ़ रही है, मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लेट सिग्मा बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये जरूरी है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ओके, वायर के एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना बना आपका, सिग्मा। जैसे मैंने कहा 1 सेंटीमीटर का सिग्मा है, तो 2 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। 3 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3 सिग्मा। तो उसी तरह सिग्मा अगर हमने क्या कर लिया,
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर कर लिया। तो एपी वायर के लेंथ कितना है, यल है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एपी वायर कितना बनेगा, सिग्मा इंटू यल बन गया। एपी वायर का लेंथ अगर हमने स्मॉल एल कंसिडर कर दिया तो वायर एपी का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, सिग्मा इंटू यल बन गया। ओके, तो रेजिस्टेंस बन गया आपका। तो देयरफॉर वीएपी इक्वल्स टू आपको क्या मिला, चलो इसको हम इक्वेशन 1 पुट कह देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1 अगर आप करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको यहाँ पे मिलेगा वीएपी इज इक्वल्स टू आरएपी, तो आरएपी की जगह पे मैं लिखूंगा सिग्मा यल इंटू आई। अब देखो आई कांस्टेंट है क्योंकि ये पूरे वायर में से जो फ्लो वाला करंट है वो आई है, आपको सर्किट डायग्राम से दिखता भी है। तो वीएपी इज इक्वल्स टू सिग्मा, आई सिग्मा लिखूंगा मैं, आई सिग्मा यल, तो सिग्मा भी कांस्टेंट है। अब देखो सिग्मा को हमने क्या लिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस अगर मैं आर ए बी कहता हूँ, पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर ए बी है, और तो पूरे वायर की लेंथ तो हमें पता ही है कितना लेना है, तो अगर उसको डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कर देता हूँ तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। पूरे वायर का रेजिस्टेंस हमने लिया आर ए बी, पूरे वायर का आपका लेंथ है यल, तो टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज सिग्मा। ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन। अब ये बना आपका इक्वेशन, क्या बना इक्वेशन कि वायर के कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप उसका इक्वेशन बनेगा आई सिग्मा यल। दो पॉइंट के बीच में लेंथ ऑफ वायर कितना है, वो यल है, सिग्मा क्या है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, और आई है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। इसका मतलब आपको तीन चीजें पता होना जरूरी है। अगर आपको वायर के कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको तीन चीजें पता होना जरूरी है। पहली चीज, करंट कितना फ्लो हो रहा है उस वायर से। दूसरी चीज, जो पॉइंट के बीच में आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, वो दो पॉइंट के बीच में वायर का लेंथ कितना है, दैट इज यल। और तीसरा पॉइंट, पूरे वायर का रेजिस्टेंस, अगर पूरे वायर का लेंथ पता है यू कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये अगर तीन चीजें पता है तो पोटेंशियोमीटर में आप कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई और सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे तो वीएपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। तो जो हमने प्रिंसिपल कहा था वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, ये प्रूव हो गया। समझ में आई बात। तो देखो बच्चों, यहाँ पे करना क्या है आपको, अगर पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको सिर्फ तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले उस वायर से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ये निकाल सकते हैं हम, अब हम प्रॉब्लम में डिस्कस भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो टोटल करंट निकालना है, वायर में से कितना फ्लो हो रहा है। बाद में आपको निकालना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस दिया वाला है, पूरे वायर का लेंथ दी हुई है, तो आप सिग्मा निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो। और तीसरा आपको पता होना चाहिए, जो दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो वो दो पॉइंट के बीच में लेंथ कितना है वो आपको पता है, तो आप इजीली फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। बस इतना ही ध्यान में रखना है, ये पूरा हमने पढ़ा है, लेकिन ध्यान में आपको इतना ही रखना है। अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि भाई पोटेंशियोमीटर वायर में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर वीडियो आपको लाइक लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत होती है, क्योंकि लैंग्वेज जितना इजी हो सके उतना हम बताने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।